I'll ask from you, why exactly do you want to be there? Do you know what it takes to be in the armed forces? What all do you have to sacrifice? What all do you need to attain with a new personality? What exactly is the importance of the next few days? Especially, I would say, next 50 days की क्या importance है? We are going to be talking about that thing. So ये बहुत important है that you know that what next 50 days hold in themselves. We should all be knowing about this thing कि 50 days की क्या importance रहने वाली है. It's going to be quite roller coaster, right? What are the challenges? What should be the strategy? What are the different things you got to do? Subject wise strategy, and of course, end May surprise is there for all of you. So stay till the end, and you will be getting the surprise. So in this short workshop, I'll be taking all your doubts. You will be getting surprise, and all these agendas are going to be covered one by one. So before I even start with the hardcore thing, before I even start with the workshop, इससे पहले कि मैं वर्कशॉप वगैरह के ऊपर प्रॉपर तरीके से स्टार्टिंग करूं, मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूं सबसे, एंड आई होप यू नो व्हाई आई आस्क दिस क्वेश्चन. नो आरुषि, ये तो बेटे लाइव ही होता है. दिस वर्कशॉप इज ऑलवेज लाइव ओनली. आई जस्ट वांट टू आस्क यू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. व्हाई डू यू वांट टू जॉइन द आर्म फोर्सेस? नाउ आई नो यू मस्ट बी थिंकिंग कि भाई ये क्या क्वेश्चन है, इसका क्या फायदा है, बट ट्रस्ट मी इसका बहुत फायदा है. सो जस्ट अ फ्यू पीपल, इफ यू टेल मी. हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है. अभी दैट्स अ गुड थिंग. Okay, so a lot of people want to be independent. Very good. I won't be naming you guys, so be aware of that. So it's in your breath. Absolutely. Desh ki seva. You want to serve the nation. Very splendid life. Lots of adventure. A lot of opportunities. Chale, I'm glad. Okay, passion is there. So I'm getting a lot of answers. Okay, hundreds of people are answering. Junoon hai, lifestyle. That's good. Now, let me tell you this thing. Why I asked this question from you. Everyone asks for this motivation. Fine. सब कहते हैं सर मोटिवेशन चाहिए. A lot of people, not every one of you, but most of the people come to me कि सर okay, motivate कैसे हो and all that. Let me tell you one very simple thing. Every one of you, almost every one of you want to serve the nation. That's one thing. But other than that, even if you want to join the service for a lifestyle, for the opportunities, for adventure, for the prestige, for the legacy, for the glory, it is absolutely fine. This is the question you got to ask to yourself. आपको खुद पूछना है अपने से कि भाई आंखें बंद करो, अपने आप से पूछो कि भाई मैं क्यों ज्वाइन करना चाहता हूँ. आप सीडीएस के एग्जाम दे रहे हो, अगर आपने इसलिए दे दिया कि मम्मी पापा ने बोला है, देन ट्रस्ट मी वो मोटिवेशन ज्यादा देर तक नहीं रहेगी. लेकिन अगर आपने खुद अपने अंदर से मोटिवेशन क्रिएट कर ली कि भाई मुझे तो ये हासिल करके ही रहना है, दैट इज फ्रॉम वेयर इट ऑल स्टार्ट्स. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रस्ट मी ऑन दिस थिंग. दिस इज ऑल सेल्फ मोटिवेशन, एंड दैट इज व्हाई आई हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन. तो ये क्वेश्चन मैंने क्यों पूछा है समझो. हो सकता है आपको यूनिफॉर्म पसंद हो, दैट इज फाइन, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट. हो सकता है you just want to be in the uniform and it brings a lot of glory to you, it brings a lot of happiness to you. So it is fine. आप जिस भी चीज के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, there is nothing wrong in that. So अपने आप पहले तो सेल्फ मोटिवेशन लाइए. ये पहली चीज है, बाकी हर चीज बाद में. पहली चीज है सेल्फ मोटिवेट रहो, सेल्फ मोटिवेटेड रहो. अपने आप से पूछते रहो कि भाई मैंने ये सपना देखा है, मैंने एम सेट किया, मैंने एम सेट क्यों किया है. आप खुद ही जस्टिफाई कर दोगे उसको. आप किसी से मत पूछो कि भाई मुझे क्यों करना है, आप अपने आप से पूछ लो. आप खुद के ही मोटिवेटर बनते हो, ये बात याद रखना. मैं पहले इस पे इसलिए पॉइंट रख रहा हूं. किसी को एयरफोर्स में जाना है, रफेल उड़ाना है, दैट इज फाइन. किसी को ग्लोब मास्टर उड़ाना है, दैट इज एब्सोल्युटली ओके. गेटिंग द पॉइंट. सो आप शिनूक उड़ाना चाहते हैं, आप AK-47 चलाना चाहते हैं, आप इंसास चलाना चाहते हैं, आप आर्टिलरी में जाना चाहते हैं, इन्फेंट्री में जाना चाहते हैं, आप नेवी में सबमरीन में जाना चाहते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर पे जाना चाहते हैं, आपके ऊपर है. नाउ I'll tell you why I feel कि इंडिया में रहना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है. क्योंकि in India you get this chance to choose the life you want to live. आपके ऊपर कोई डिक्टेट नहीं कर रहा है. आपको ये नहीं कह रहा है कि भाई आप तो इस घर में पैदा हुए हो तो आप तो बिजनेस ही करोगे, आप तो भाई गरीब हो आप गरीब रहोगे, आप अमीर हो आप ये करो, आप इस कास्ट को बिलोंग करते हो ये करो. ऐसा कुछ नहीं है. दिस इज द बेस्ट थिंग व्हिच आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन कि भाई आप सपना देखो, आप मेहनत करो, आप उसको अचीव करो. आई थिंक इट्स फाइन. अब हमने बहुत ज्ञान की बातें की, लेकिन व्हाट इज द रियलिटी. रियलिटी भाई ये है कि 2 लाख से भी ज्यादा लोग अपीयर करते हैं, 7,000 लोगों को एसएसबी कॉल आती है और लगभग 350 लोग वो हैं जो फाइनल मेरिट में आते हैं. नाउ व्हाट इज योर टारगेट. आपको सिर्फ ये टारगेट है कि मेरिट में हमें आना है.
लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, जो कि आपका रिटन एग्जाम है उसको सबसे पहले क्लियर करना है, मानते हैं? सो दिस इज द फर्स्ट स्टेज, you got to clear the first stage, and clearing the first stage properly with conviction, वो कहते हैं ना कन्विंसिंगली क्लियर करना बहुत जरूरी है। कन्विंसिंगली क्लियर करने का मतलब क्या होता है? कन्विंसिंगली क्लियर करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप उसको इतने मार्क्स से क्लियर करो कि आपके आसपास भी कोई नहीं है, मतलब जब आप रिकमेंड हो तो आप मेरिट लिस्ट में होने चाहिए। फाइन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी प्रिया, बहुत बड़े। सो आपको ये पता होना चाहिए कि ये आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट पिरामिड है जिसको आपने ध्यान में रखना है। अब बहुत सारे मिथ्स हैं देखो सीडीएस को लेके, वो मैं वन बाय वन क्लियर करूंगा। कई बार क्या होता है, कई आपको बोलेंगे कि भाई सिर्फ जीएस पे फोकस करो आपका हो जाएगा एग्जाम। ये बिल्कुल गलत बात है। आपको इंग्लिश पे भी फोकस करना है, और अगर आप आईएमए के लिए ट्राई कर रहे हो, एयरफोर्स एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी, तो मैथ्स भी पढ़ना पड़ेगा। ओटी वालों को मैथ्स नहीं पढ़ना, बाकी सबको तो मैथ्स भी पढ़ना पड़ेगा। कई कहते हैं कि सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर लो, नहीं, आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करके कुछ नहीं मिलेगा। यू हैव टू एम फॉर हायर मार्क्स। सिर्फ कट ऑफ का टारगेट कभी मत बनाओ। कई बोलेंगे कि भाई कंपटीशन तो बहुत लेस है, हो जाएगा। नहीं, कंपटीशन इज गुड, कभी भी कंपटीशन को कम मत समझो, ये आप में कॉम्प्लिसेंसी लेकर आएगा, और कॉम्प्लिसेंसी इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ सक्सेस। याद रखिएगा, जो व्यक्ति कॉम्प्लिसेंट होता है वो सक्सेस तक कभी नहीं पहुंच पाता, क्योंकि वो कॉम्प्लिसेंसी में रह जाएगा हमेशा। कई आपको बोलेंगे कि भाई मेमोरी बेस्ड एग्जाम है, आपकी शार्प मेमोरी चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ मेमोरी बेस्ड एग्जाम नहीं कहते हो आप, इसके अंदर यू हैव टू हैव अ स्ट्रेटजी ऑफ योर ओन। उस स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे तब आप पे निकलेगा। ये आप कभी नहीं कह सकते कि हाँ मेमोरी अगर शार्प है तो आपको हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो मेरा आपको मतलब जो जो पूरा एक आइडिया है जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, वो क्या है? वो यही है कि हमें इन माइनर चीजों को समझना है। सिर्फ प्रीवियस ईयर और क्वेश्चंस को देख के क्रैक नहीं होता है, हमें इसकी रियलिटी जाननी बहुत जरूरी है। दैट इज व्हाई आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, गेटिंग इट? सो हमें सबसे पहली जो चीज समझनी है बेटे वो ये है कि इट्स अ हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जब भी आप सीरियस एग्जाम की बात करते हो, आज की डेट में कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आपको पता कट ऑफ राइज हो रही है। एक टाइम था ओटीए की कट ऑफ 93 94 रहती थी आउट ऑफ 200, आज की डेट में 107 हो गई आउट ऑफ 200, एंड वी डोंट नो कि नेक्स्ट ईयर कितनी जाएगी। सो द प्रॉब्लम इज दैट द कट ऑफ इज शूटिंग लाइक एनीथिंग, एंड यू हैव टू वेल प्रिपेयर्ड। आईएमए की देख लो 150 प्लस, यू हैव टू ऑलवेज बी देयर। एयरफोर्स एकेडमी की तो 158। तो कहने का मतलब यह है कि हमें अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसको थोड़ा सा रिवाइज करना बहुत जरूरी है। दैट इज द रियलिटी। सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स फर्स्ट थिंग। पेपर लेवल इज इजी टू मॉडरेट ओनली if you prepare well. If you prepare with a proper strategy, you are good to go. Selection rate is low, I agree. In-depth study is must in this examination, it's a fact. But at the same time, what exactly is required out of you? First thing which is required in order to join the armed forces is stop making any type of excuses. If you do, you're not supposed to make any excuses, because a lot of people do that. Some people will say, "Arey sir, syllabus is very vast, we don't have time." Some people will say GK is very tough, समझ नहीं आती. These are all excuses. You're not supposed to do that. मतलब, do you tell me, do you think that the armed forces have any place for excuses? You go on a mission and will you make excuse कि आज तो पेट में दर्द हो रही है, I can't go on a mission? Can you blame on your soldiers? No, you can't. If you are leading them, you are the one who is responsible for all the actions in the field. You are leading those lads. You are supposed to be responsible for their life. If any single person fall in the line of duty, you are going to be responsible for that. You have to be answerable for that. So stop making excuses. You'll study in the last month. It is all not going to work. We are already in the final stages. Now it's now or never already. You know, some people are giving exam just for experience. It's better you don't give it. If you're giving the exam, make sure that you make it to the final list. Don't just give for fun. This place is not just ki, okay, aaj to maza lenge, exam denge. No. Please go there with your mind clear and never ever think of the next time. There's no next time. It has to be this very time. This very time has to be there. कि ठीक है भाई, इस बार हमने देना है, इस बार हमने क्लियर करना है. This is very very important. हाँ जी, I'll take all it out, so worry. So I'll tell you, you know, 3 things which you need. You know, in armed forces they tell you about 3 Ds. What is 3D?
Anyone? What exactly are the 3Ds for an officer? Determination, dedication, and discipline. So your life has to be 3D life. ये बात याद रखिएगा. ऋतिक प्रेशर नहीं लेना, आराम से आप रखो. What are 3Ds? Your life has to be in 3D mode now. So this 3D mode is determination, dedication, and discipline. Determination to become an officer, you have to do it. There's no if and but. Dedication to cover your full syllabus, and discipline from written till SSB. Now, discipline is there in every walk of life. What time do you wake up? What time do you sleep? Do you follow a timetable or not? Do you follow a healthy routine or not? It is all up to you. This will show up over there. So you have to be very clear in this aspect कि भाई आप disciplined हो कि नहीं हो, ये पता चल जाना चाहिए. You yourself should ask, you should ask yourself, am I disciplined or not? I hope I'm giving you a lot of clarity in these aspects. Now the next idea is that why next 50 days are going to be very, very important for you guys. Let me tell you. Next 50 days actually are very, very important. Why? I don't think I need to tell you this thing, but still I'm telling you. You have to give direction to your preparation. Now this is the final direction you need to be giving. What is final direction? Final direction basically needs revision. Final direction basically needs mocks. Why? In order to beat the competition, in order to have clarity of the thoughts, so that when you go into the examination hall, you should be very well prepared in order to do well in the examination. That's very important. You have to give equal importance to all the subjects. English ko bhi padho, GS ko bhi padho. If you need maths bhi padho, if you need it for your permanent commission. You have to ensure no topic is remain untouched. And trust me, mocks will help you a lot. Mocks tend to cover all the high value topics. All the high value topics are covered in the mocks, and trust me, they help you a lot. So when you do the mocks on the regular basis, you are absolutely good to go. So I'll tell you, what exactly are the challenges which you guys face. Most of the people do face this challenge. I'll tell you what is that. Low score in the GS section, I think it is something which everyone face. Because GS क्या है, 100 marks का पेपर है. बहुत सारे लोग even 40 plus जाने में भी struggle करते हैं. But trust me, if you are doing all the high value topics properly, you can go till 55 out of 100. People are going above 60 also. But 55 out of 100 is a decent score. I'll be very honest with you. अगर आप 55 भी ला रहे हो ना, 55 to 60 is a good score. It's not a bad score at all, क्योंकि इंग्लिश में आप ज्यादा स्कोर करोगे. इंग्लिश में you can do very well. इंग्लिश में 80 प्लस जाना भी इजी है. वहां पे अगर 80 भी ले आते हो, यहाँ पे आप 55 भी ले आते हो, तो it's 135 out of 200, which is not a bad score at all. And जो मैथ्स वाले हैं, वो तो ऑफ कोर्स मैथ्स में ले ही आएंगे 50 प्लस, तो वो स्कोर और खींच के ले जाएंगे. तो कहने का मतलब ये है that don't be rude to yourself. Don't be very harsh upon yourself कि नहीं मुझे तो 80 लाने जीके में. It's going to be a tough task. A lot of people are directionless. So see, if you have been with Byju's exam prep, आपको मैंने और मेरी पूरी टीम ने काफी डायरेक्शन आई थिंक दे दी होगी. You have got wonderful mentors over here. I'm not talking about myself. बाकी सभी faculties जो है, they have been, I think, good to you. They have told you all the high value topics, strategies के session हुए, सारा कुछ हुआ है. See, rising level of the exam and cutoff is a challenge, but trust me, don't focus over here. Don't focus unnecessarily on this. This can be very disheartening. मैं समझ सकता हूँ. If somebody is just focusing on this thing, bhai, this is the cutoff, this is the cutoff, this is the cutoff, it doesn't work at all. Just keep it away for some time. You have to focus on the perfection. You have to focus on the mocks. Mocks करते रहो. Marks को ज़्यादा impact ना होने दो. बस देखो कि हाँ कहाँ पे मैंने गड़बड़ की है. That's it. You have to focus on just the mocks अभी के लिए. Give sectional mocks, give full mocks. Give sectional mocks, give full mocks. Always do a proper SWOT analysis. What are your strengths? What are your weaknesses? Keep on focusing on them. And this absolutely is going to raise the level. A lot of people ask me, sir, is 150 score possible? Absolutely it is. Why it is not? Getting it? 150 plus score is very much possible. You have to just start small. Just, small targets. Because see, you still have got 50 days in your hands. 50 days. That's a lot. 50 दिन का आपके पास समय है. So since you have got 50 days in your hand, I really don't think it's an unimaginable thing. It's not a thing which is beyond
your imagination, अभी तक कुछ तो पढ़ा होगा. I'll say very honestly with you. Just consider this advice very clear. I know there may be some people who have wasted their time. Not wasted कि वो enjoy कर रहे थे, but कई बार होता है कि हम नहीं पढ़ पाए. It's absolutely fine. आप ऐसे बहुत सारे लोग होंगे कि भाई by chance ऐसा हुआ कि they were trying to focus, but maybe there were some problems. Maybe college was there. Maybe some other thing in the family was there. Maybe anything else. So now leave it aside. Be a warrior now. Next 50 days के लिए वो कहते हैं ना कमांडो. So कमांडो की जो important strength होती है पता है आपको, वो यहाँ पे नहीं होती ना. कमांडोज यहाँ से बनते हैं, कभी भी याद रखिएगा. You will go for the commando task. You will be going for the training. So you will become commando from here. Because when the physical breakdown happens, it is your mental strength which keeps you going. And this is what you need right now. I'll tell you what, I don't know the saints in real life, but one of a very good friend of mine, he's a Marco. Let me share with you. So, वो Marco है, NDA में गया, and then he opted for the Navy, and he's a Marco now, Marine Commando. And trust me, to me, he is a saint. Fine. So this is what the idea is. You have to be a saint. You have to be a saint, not वो दाढ़ी बढ़ा के ऐसे कपड़े पहन के वो वाला saint नहीं. What is a saint actually? Saint is someone who is very much focused. That person who knows कि ठीक है मेरा ये target है, and very easily without any distraction you are going to move forward. So for the next 50 days, all the distractions should go to the dustbin. Trust me, अगर अभी भी नहीं समझे तो कभी नहीं समझोगे जिंदगी में. ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ. अगर आज भी आपको ये चीज नहीं आई ना अंदर से, फिर कभी नहीं आएगी. So trust me on this thing. अभी के लिए अपने आप को मार्को एक कमांडो समझ लो कि भाई I am just going to be focused on this thing. Ask yourself मेरी क्या वीकनेस है. अपनी प्रायोरिटी सेट कर दो यार. मैथ वीक है, पढ़ो. जीके वीक है, जीके में इकोनॉमी नहीं आता, पढ़िए. फाइन. Try to study about the important things. We at the YouTube are bringing so much. मैंने एक मास्टर सीरीज चलाई. मास्टर सीरीज में इतना कुछ मैंने पढ़ाया. I don't know आप में से कितने लोगों ने अटेंड की, but जिसने अटेंड की उसको फायदा मिला. Try to pick the best and keep on revising things. Trust me, जो रिवाइज करेगा, रेगुलर टेस्ट देगा, वही बेटर होगा. It's a fact. I'm just see, this workshop is not an ordinary workshop. ये वर्कशॉप लाने का क्या फायदा मेरा? ये वर्कशॉप लाने का सिर्फ यही फायदा है कि भाई ये एक टाइम है जो एक हम लोग क्या कर रहे हैं. इट इज जस्ट अ टॉक विद यू गाइस, नथिंग एल्स. कोई मैं ज्ञान नहीं बांट रहा हूँ. इट्स जस्ट अ फ्रेंडली टॉक विद यू गाइस. फाइन. ट्रस्ट मी, एट दिस पॉइंट इन टाइम अगर आप थोड़ा सा रनिंग करोगे ना सुबह उठ के आधा घंटा, बहुत अच्छा लगेगा. जस्ट गो फॉर अ रन. You will feel so much light. You'll feel so much great, from within. When you start your day in such a manner, there's nothing which can beat that. Trust me. सुबह जब आप अपने आप को तोड़ते हो ना, आधा घंटा भागते हो, बहुत मजा आएगा. एंड सिलेबस वगैरह आप अभी जितना कर चुके हो दैट इज फाइन. आप सीधे मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो. मॉक टेस्ट में आप खुद देखोगे स्कोर आपका बढ़ता रहेगा. इट्स अ प्रोसेस. तो आपको एलिमिनेशन पता चल जाएगी. आप बोलेंगे हाँ भाई ये क्वेश्चन देखते देखते इंस्टिंक्ट्स डेवलप होने लगती हैं. आपने करना क्या नेक्स्ट 50 डेज में, आप ये जानो. मेरी बात सुनो ध्यान से. 10 दिन इंग्लिश को दे दो, 20 दिन जीके को दे दो, 10 दिन मैथ्स को दे दो, 10 दिन अपना रिवीजन मॉक टेस्ट को दो. अगर आपने मैथ्स नहीं करना, आप ओटी वाले, तो 20 दिन रिवीजन को दे दो, पूरा मॉक टेस्ट. इतना काफी है. देखो इंग्लिश में क्या है, आपको फिर से वही है कि मॉक्स जो है उसके ऊपर फोकस करना है. ग्रामर और वोकैबुलरी दोनों में देखो आप कहां फंसते हो, उस पर ज्यादा फोकस कर दो. बेटे एज का तो बलराम अभी बात ही नहीं है, वो तो जब एप्लीकेशन की बात आएगी तब हम करेंगे. ठीक है, अभी तो एज की कोई बात नहीं है. अच्छा अब ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे. हाँ जी शुभम, प्रीवियस क्वेश्चन अब तो करना शुरू कर दो. अब नहीं करोगे तो कब करोगे? ठीक है बेटे, वोकैबुलरी भी नहीं, मास्टर सीरीज ऑन द ऐप. वोकैबुलरी भी करने का बेस्ट तरीका यही होता है, मॉक टेस्ट. अच्छा मैथ्स के अंदर भी जैसे टाइम, स्पीड है, डिस्टेंस है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब करना स्टार्ट करो. रोज आप 5 से 7 घंटे की क्वालिटी स्टडी देनी स्टार्ट कर दो. दैट्स इट. आपने अगर ये शुरू कर दिया है, देन आई थिंक नथिंग कैन स्टॉप यू. कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको बहुत हेल्प कर सकती है, मैं उसके ऊपर थोड़ा सा आना चाहूंगा. फाइन. सम थिंग्स, फॉर एग्जांपल यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिलेबस. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, इंग्लिश और जीके तो सबको पढ़नी है. मैथ्स उनको पढ़ना है जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी के लिए टारगेट कर रहे हैं. कुछ लोग मैथ्स वाले भी हैं, बट इंग्लिश और जीके तो सबको करनी ही है. फाइन.
पहले तो आप ये सिलेबस समझो कि 3 पिलर है सिलेबस के. नाउ व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, लेट मी टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं क्यों इतना आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके ज्ञान दे रहा हूं, उसको समझना आपको पता चलेगा. सबसे पहली बात है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या करेंगे, आपको एक आइडिया देते हैं एग्जाम पैटर्न का. आपको लेटेस्ट ट्रेंड पता चलता है कि क्वेश्चंस किस प्रकार के आ रहे हैं, आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, और आप कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करो, ये आपको बताएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब तक आप नहीं करते, आपको यहां तक कि हाई वैल्यू टॉपिक्स जो है वो भी नहीं पता चलेंगे कि क्या है. What all are the high value topics? You are not going to find out till the time you focus on the previous year questions. So previous year question इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं. पहली बात. अब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या फायदा हुआ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लिए, उसको मॉक टेस्ट की तरह सॉल्व करते जाओ. जब आपने सॉल्व किया तब आपको पता चलेगा कि भाई मेरी ये एरिया स्ट्रांग है, ये एरियाज वीक है. जो वीक एरियाज है उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करो, और स्ट्रांग एरियाज को आपने इग्नोर नहीं करना, उसको और ज्यादा स्ट्रांग बनाना है. मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, ठीक है. जीएस क्वेश्चन पेपर विल कम इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ. जैसे मान लो आपने जीएस का पेपर सॉल्व किया, आपको लगा कि यार इकोनॉमी मेरी बड़ी कमजोर है, अब क्या किया जाए, इकोनॉमी पे काम करो. इकोनॉमी पे काम कैसे करें, तो इकोनॉमी के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ना स्टार्ट कर दो. जैसे जीडीपी जीएनपी है, एफडीआई एफआईआई है, क्या फर्क है जीडीपी जीएनपी में, मनरेगा स्कीम पढ़ लो, व्हाट इज टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इस तरह की चीजें करना स्टार्ट करो, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा. फाइन, यस अनुभव, यू कैन से सो. तो हमें इन पॉइंट्स को बहुत ध्यान से समझना है, कोई सब्जेक्ट छोड़ के मत जाना, ये मेरी रिक्वेस्ट है. आपने पॉलिटी छोड़ा, पॉलिटी तो छोड़ के जा ही नहीं सकते. पहली बात, आपने इकोनॉमी छोड़ा, इकोनॉमी से 4 क्वेश्चन आए बच्चों वाले, आप फंस गए. कोई सब्जेक्ट छोड़ना नहीं है. इंग्लिश है पढ़ो, जीके है पढ़ो, मैथ्स अगर है तो वो भी पढ़ो, अगर आप ओटी वाले नहीं हो तो मैथ्स भी पढ़ोगे. आपको प्रॉपर तरीके से हर चीज जाननी है. और जहां तक रिसोर्सेज की बात है, तो अभी रिसोर्सेज को आप ज्यादा फोकस ना करो. अभी एनसीईआरटी मत पढ़ना कि एनसीईआरटी खोल के बैठ जाओ, अभी वो टाइम नहीं है. अभी आप रिवीजन पे ध्यान दो. जो टॉपिक आपको समझ नहीं आता, हाँ वो किताब से पढ़ना है तो पढ़ लो, पेज टू पेज पढ़ने का टाइम नहीं है अगर आपने पहले नहीं पढ़ा तो. अगर पहले पढ़ा था तो अच्छी बात है, पहले नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ने का फायदा नहीं है. रेगुलर टेस्ट सीरीज करिए, स्कोर को अपने एनालाइज करो, उसके बाद फिर से रिवीजन मोड में चले जाओ. एरियाज देखो आपके इंप्रूव हो रहे हैं कि नहीं, एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट आप लो. लास्ट 30 दिन तो हमने सिर्फ टेस्ट ही देने, रियलिटी चेक तभी होगा प्रिपरेशन का. ट्रस्ट मी, इट्स अ वेरी सेंटली थिंग टू डू. नॉट एवरीवन कैन डू दैट, इट्स अ फैक्ट. बहुत सिंपली चीज है ये, और जिस दिन आपको ये करना आ गया, nobody can stop you from gaining the confidence which you need to clear the examination. देखो सीडीएस पे ऐसा एग्जाम नहीं जो अनअचीवेबल है, बच्चे इसको अपनी गलती से अनअचीवेबल बना लेते हैं. अनुभव, इंडिविजुअल सब्जेक्ट का तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है बेटे, ठीक है. अब ध्यान देना, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, मैं वही बता रहा हूं आपको. देखो भाई, मेरे हिसाब से तो इंग्लिश सबसे ज्यादा स्कोरिंग सेक्शन है. कैसे? 80 to 85 आप जा सकते हो आउट ऑफ 100 अगर आप ढंग से पढ़ाई करो तो. जीएस में तो 55 तक जाने में भी कई बार दम निकल जाता है, 60 तक जाने में भी दम निकल जाता है. इंग्लिश ऐसा नहीं है, इंग्लिश में आप कर सकते हो. पहली बात तो आप इंग्लिश पे फोकस करो. आप ना सिर्फ कट ऑफ क्लियर करोगे, बल्कि मेरिट में आने के लिए भी इंग्लिश आपका एक बहुत अच्छा साथी बनेगा. कोई भी स्टैंडर्ड बुक से आप एमसीक्यूज करना स्टार्ट कर दो. बाइजूस एग्जाम पे भी बहुत एमसीक्यूज होते हैं. वोकैबुलरी और ग्रामर जो है वो सारी आपके एमसीक्यू से मिलनी है, इसके लिए कोई किताब नहीं पढ़नी, ठीक है. अगर बुक भी उठानी है तो एमसीक्यू के लिए उठानी है. अभी इस समय वो टाइम नहीं है कि आप कंसेप्ट बिल्ड करने स्टार्ट करो, उसका कोई फायदा नहीं है. मास्टर सीरीज तो बेटे हमने यही चलाई थी, पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री की. अभी चल रही है पॉलिटी, फाइनल फेज में. तो हमने इंग्लिश के लिए इतना कर लिया, काफी है. अब बात आती है कि जीके के लिए क्या करना है. तो जीके का जैसे बताया, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इसके आपको पता है अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, आपने ये पढ़ा. जैसे हिस्ट्री में क्या है, मिडिवल, मॉडर्न, एंशिएंट. मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छे से ज्यादा कर लो. पॉलिटी है, उसमें भी आपको अच्छे खासे क्वेश्चंस आएंगे. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से आप पढ़ो. पार्लियामेंट पे क्वेश्चन आएगा, पार्लियामेंट्री कमेटीज पे आएगा, अटॉर्नी जनरल पे आएगा, प्रेसिडेंट पे आएगा, प्रेसिडेंट के इलेक्शन पे आएगा, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे. ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और एटलस जरूर पढ़ के जाना. एटलस से सीधा मैप पे क्वेश्चन आएगा. सेंट्रल एशिया पे इस बार आ सकता है, यूक्रेन पे क्वेश्चन आ सकता है, बहुत चांसेस है और आएगा ही आएगा. हम लोग बात करते हैं जीके की. तो बेटे जीके की जब बात करते हैं, साइंस, एनसीईआरटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट और करंट अफेयर्स. अब यहाँ पे क्या चीजें फोकस करें, तो साइंस जो है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़िए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें. नहीं रेनू, तो आपने ये चीजें करनी स्टार्ट कर दी.
उसके बाद एनसीईआरटी, जैसे आपने 6 to 12 भी पढ़ ली, अगर एनसीईआरटी की आपकी फाउंडेशन बन जाती है, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आपने देखे हुए हैं तो इट विल हेल्प यू लॉट। इकोनॉमिक्स में 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बेसिक आते हैं। मैंने आपको क्या बताया, जैसे मनरेगा स्कीम है, जीडीपी, जीएनपी, एफडीआई, एफआईआई, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। उसमें कोई आपको इतना ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, मतलब ये सब आपको पता है अगर बेसिक्स, तो आपका काम हो जाएगा। यू डोंट हैव टू गो इन टू मच डेप्थ इन इकोनॉमिक्स, पहली बात। नहीं नहीं समझा। अच्छा, एनवायरनमेंट के अंदर भी यही है, नेशनल पार्क्स हैं, करंट अफेयर से जुड़ी बहुत सारी चीजें आती हैं। करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको जैन से उठा लेना, करंट अफेयर जनवरी 2022। हालांकि करंट अफेयर्स के लिए तो आई विल बी ब्रिंगिंग प्रचंड की सीरीज भी, वो दिक्कत वाली बात नहीं है, वो मैं करवा दूंगा, अगस्त में मैं लेके आऊंगा। अब ध्यान दीजिएगा, मैथ्स में आपको एक्यूरेसी पे फोकस करना है। देखो 100 मार्क्स का मैथ्स भी 100 क्वेश्चंस आते हैं। अब मैथ्स में तो 100 और 100 भी पॉसिबल है, चलो ठीक है, 100 ना आए 70 प्लस तो ला ही सकते हो। प्रैक्टिस अगर आप अच्छी करोगे तो आप टाइम मैनेजमेंट करके चलो 60-70 नंबर आ जाएंगे। जैसे कोई भी व्यक्ति आईएमए टारगेट कर रहा है या एयरफोर्स एकेडमी टारगेट कर रहा है, इंडियन नेवल एकेडमी टारगेट कर रहा है, मैं उसको एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना। अगर बेटे आपने जीएस में मान लो 50 मार्क्स भी ले आए आप, ठीक है, इंग्लिश में आप 70 मार्क्स भी ले आए, तब आप 120 तक तो पहुंच ही गए हो। और अगर आप मैथ्स में 60 मार्क्स भी ले आते हो, मान लो, मैं बहुत बहुत एवरेज मान के चल रहा हूं आपको, अगर ऐसा होता है तो आप 180 नंबरों तक पहुंच जाते हो आउट ऑफ 300, विच इज नॉट अ बैड स्कोर एट ऑल। तो कहने का मतलब क्या हुआ, मैथ्स में आपने एवरेज परफॉर्म किया, 60 नंबर एवरेज लोगों के आ जाते हैं। तो आप ये मानो, अगर आप 60 की जगह 80 पे गए मैथ्स में, तो यहाँ पे आपका स्कोर क्या हो गया, 180 से 200 हो गया, 200 और 300, विच इज अ लवली स्कोर। तो आप अपनी मेरिट इंप्रूव कर लोगे। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि मैथ्स कैन बी अ गेम चेंजर। मानते हो बात की नहीं? तो जीके में बेटे जीके में 50 आ जाएंगे अगर आपकी अच्छी तैयारी है, चलो जीके में 40-45 मान लो, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, नहीं नहीं 50 वाले बहुत मैं दिखा दूंगा, 45, 40, 50 वाले हैं बच्चे, ऐसी बात नहीं है जीके में, ठीक है। सो देखो, आपको अगर फिर वही बात है कि पढ़ना नहीं तो अलग बात है, मैं एक बता रहा हूँ डिसेंट तैयारी के साथ मैं बोल रहा हूँ। तो आप ठीक है यहाँ पे 40 भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लो यहाँ पे 40 में कर देते हो जीके में, बराबर। तो मेरा यहाँ पे ये मानना है कि आप यहाँ पे चलो 170 इज नॉट अ बैड स्कोर। तो कहने का मतलब है कि मैथ्स कैन बी ए गेम चेंजर फॉर एवरीवन। मैथ्स में कमजोर भी हो तो आप 50-60 तो लाओगे ही। तो मेरे कहने का मतलब ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इन चीजों को इग्नोर ना करें, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बायजूस एग्जाम पर आपको कैसे हेल्प करता है, हमारे जो भी कोर्सेज हैं, मतलब इन केस यू वांट टू टेक, दे आर ऑल फाउंडेशन लेवल कोर्सेज। फैकल्टीज कैसी हैं वो तो आप जानते ही हैं, क्विजेस है, पीडीएफ है जो कि आपको रिवीजन में बहुत हेल्प करते हैं, एंड मॉक टेस्ट आपको एग्जाम रेडी बनाते हैं, प्लस रियलिटी चेक देते हैं कि आपके पीयर्स कहां पे मूव कर रहे हैं, वो आपको पता चलता है। एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग व्हिच वी हैव एट बायजूस एग्जाम प्रेप फॉर एवरीवन। तो आप याद रखिएगा, देखो मॉक टेस्ट आपको बहुत मदद करेंगे, याद रखना, मॉक्स जीएस हो या कुछ भी हो, मॉक्स आपको बहुत मदद कर देते हैं। अगर आप जीएस के अंदर 120 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से 80 भी अटेम्प्ट करके आते हो डिसेंटली, तो आप अपना बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो यार, ऐसी कोई बात नहीं है। फाइन, यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट इन योर अप्रोच। मतलब जो भी व्यक्ति ने 80 भी ढंग से अटेम्प्ट किए हैं, दे विल बी स्कोरिंग मोर देन 60 मार्क्स, 60 प्लस मार्क्स रहेंगे उनके। 80 to 85 जो अटेम्प्ट कर रहे हैं, बहुत सेफ वाले, मैं सेफ की बात कर रहा हूँ। तो जीएस में 60 मार्क्स लाना ऐसी बात नहीं है कि बहुत मुश्किल है, मैं आपको बच्चे दिखा दूं जो कि लाते हैं, तो 50 मार्क्स तो डिसेंट आ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ जी हाँ जी, हलवा, ठीक है, बहुत बढ़िया, ओके ओके ओके, चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। चलो बहुत अच्छी बात है ये तो, हलवा, थैंक यू प्रिंस, बहुत बढ़िया। तो मतलब मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 150 बैक टू बैक स्कोर किए हैं, तो मतलब आप कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं। हाँ जी हाँ जी। आप ओटीए वाले जो है, ओटीए वालों का तो सिंपल हिसाब है, जीके है और इंग्लिश है। इंग्लिश में लाइए 80, जीके में लाइए 50, हो गए 130, नोबडी कैन बीट यू। अब इसमें 5 नंबर ऊपर नीचे भी हो जाते हैं, दैट इज आल्सो फाइन। 120 प्लस टू टारगेट करके चलोगे ही ओटीए में, दैट्स इट। चलो बहुत बढ़िया,
सारी अवेलेबल है जी रिकॉर्डिंग मास्टर सीरीज। अब बात आती है, चलिए आई थिंक आपके काफी सारे डाउट्स क्लियर किए मैंने। जीएस सेक्शन, बेटे जीएस सेक्शन में वही है, रिवीजन करो सारी। अब आपकी गिफ्ट का टाइम आ चुका है, एक गिफ्ट है आप सबके लिए मेरे पास। तो एक बार कमेंट सेक्शन में देखिएगा, आपको ये गिफ्ट मिल रहा होगा। कैन यू सी दैट इन द कमेंट सेक्शन में पोस्टेड अ लिंक। इस लिंक को फटाफट से क्लिक कर लो। खुला है गिफ्ट की नहीं खुला है, देखिएगा एवरीवन। जिसका नहीं भी हो रहा है वो किसी फ्रेंड को बोल देना, उसका खुल गया होगा तो वो आपको दे देगा। एवरीवन ओपन हो जाएगा, बार बार आपको थोड़ा सा ट्राई करना पड़ेगा, इट विल ओपन। तो मैंने ये जो शेयर किया आपसे, इट्स अल्टीमेट गाइड टू द डिफेंस एग्जाम प्रेप, जो कि हमारी टीम ने प्रिपेयर किया आप सबके लिए। सो मेक श्योर यू क्लिक ऑन दैट। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, ऐसी बात नहीं है। शिवांजलि आप अभी भी ट्राई करो तो हो जाएगा बेटे, आप अभी भी ट्राई करो, मतलब जस्ट रेगुलरली आप फोकस रहो, इट विल बी फाइन। एंड देखो, पहले बहुत बच्चों ने क्लियर किया डिफेंस एग्जाम, आई एम श्योर यू ऑल कैन डू दैट। सो इट वाज ग्रेट हैविंग दिस सेशन। एक बार फिर से ट्राई करिए, जो लिंक मैंने दिया है उसको ओपन करने का, काइंडली कीप ऑन ट्राइंग। मैं फिर से भेज रहा हूँ लिंक, मैंने 2 बार भेज दिया है, वो हो जाएगा। आपके किसी फ्रेंड को ओपन हो गया होगा, तो किसी का तो ओपन हुआ होगा लिंक, ठीक है। So anyways, just keep trying. You know, it's an authentic link. मैंने पहले भी शेयर किया. So it's a surprise gift for all of you, which has been made. एक rigorous hard work के बाद ये पूरी चीज create की गई है हमारी पूरी टीम के द्वारा. So I really hope you like this workbook. It's a ultimate guide for you guys for all the examination out there. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी पूर्णमेश, बिल्कुल जी, 24 है at the time of the commencement of the course बेटे, ठीक है। सो ई बुक कईयों की ओपन हो गई है, सो आई होप इट हेल्प्स। सो यहाँ पे पूरे सेशन में आई होप यू गॉट सम मोटिवेशन व्हिच वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, एंड दैट्स वेरी मच इट। चलिए बेटे ट्राई करते रहे, हो जाएगा। वो लिंक अपने पास रख लो, वो ओपन हो जाएगा। अपने लैपटॉप में ओपन करके देख लेना, अपने लैपटॉप में ओपन करके देख लेना, वो ओपन हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है जी। आई रियली होप दैट इट वाज ग्रेट सेशन फॉर यू गाइस, एंड मुझे बहुत मजा आया इसमें, एंड दैट्स इट फॉर नाउ। चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं भी ओपन हुआ है फिर मैं शेयर कर दूंगा कभी। एंड सो टेक केयर एवरीवन, एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, अटेंडिंग दिस मेगा वर्कशॉप। एंड आप सबको बस एक ही चीज अब करनी है, नेक्स्ट 50 डेज अपने आप को एकदम फोकस रखना है, एंड ट्रस्ट में यू ऑल कैन डू दैट, इट्स अ फैक्ट। थैंक यू सो वेरी मच।